Next, we have to do specific resistance and resistivity की definition. Again, same derivation या formula जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा. सर हाँ जी. अपने असाइनमेंट के डाउट्स कब लोगे आप, और एचसी के भी डाउट्स हैं. यूजुअली असाइनमेंट के कल सुबह. और सर एचसी. HC के कैपेसिटेंस के मे भी एक हाँ दिन और क्लास लगा लेंगे. इस क्लास में नहीं लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा. जी सर. So you can write specific resistance or resistivity. Specific resistance or resistivity. Experimentally it was found that resistance of a conductor experimentally it was found that resistance of conductor depends on dimensions of the conducting material A part is resistance is directly proportional to the length of conductor. Resistance is directly proportional to length of conductor. B part is resistance is inversely proportional to the cross-sectional area. Combining two results. Rho is constant of proportionality. Called specific resistance. Mathematically, you can say that rho is RA by L. So, अगर A को 1 ले लेंगे, L को 1 ले लेंगे, then rho is R. So you can write. It is a material dependent constant. It is a material dependent constant. But its value can change with. Change in physical conditions. But its value can change with change in physical conditions. Specific resistance can be defined as सर फिजिकल के बाद क्या बोला था, चेंज इन फिजिकल. change in physical conditions. Specific resistance can be defined as resistance of a conductor having unit length in unit cross-sectional area. Resistance of conductor having unit length and unit cross-sectional area.
So you can write, इसके नीचे note में लिखो first point. The resistivity of a material is, the resistivity of the material is inversely proportional to the number density. The resistivity of material is inversely proportional to the number density. Therefore, if by changing the physical conditions, if by changing the physical conditions, the number density increases, if by changing the physical conditions, number density increases, the resistivity will decrease. Example में कल क्या किया था हमने इसमें? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी. सेकंड यू कैन राइट. सर एक बार रिपीट कर दो. Resistivity of a conductor is inversely proportional to the number density. Therefore, if by changing physical condition, number density increases, resistivity will decrease. If by changing physical conditions, number density increases, resistivity will decrease. Second is, resistivity is inversely proportional to the relaxation time, is inversely proportional to the relaxation time. Therefore, if changing the physical conditions increases collision frequency, if changing the physical conditions increases collision frequency, relaxation time will decrease, relaxation time will decrease, and number density increases, and resistivity increases. Relaxation time will decrease and resistivity increases. रिपीट करना लास्ट लाइन. Therefore, if by changing the physical conditions, collision frequency increases, relaxation time will decrease, relaxation time will decrease, and resistivity increases. Next, you write variation of resistance, variation of resistance. तो ये अगला टॉपिक है. हाँ, variation of resistance with change in dimensions. Variation of resistance with change in dimensions. So you can write for a conductor of length L, for a conductor of length L and cross-sectional area A. For a conductor of length L and cross-sectional area A, resistance is given by R is equal to rho L by A. If physical conditions remains unchanged, if physical condition remains unchanged, specific resistance will be constant. Specific resistance will be constant. Therefore, for small changes in dimensions,
The fractional change in resistances. Delta R by R किसके इक्वल होगा? स्मॉल चेंजेस इन क्या बोला था आपने, वो थोड़ा Dimensions. सर उसके आगे क्या था डायमेंशंस के? The fractional change in resistances. एरर्स का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं. डेल्टा आर बाय आर इज डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा ए बाय ए. और वायर का क्रॉस सेक्शनल पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया के टर्म्स में लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा रेडियस के टर्म्स में कि डेल्टा आर बाय आर इज डेल्टा एल बाय एल प्लस टू डेल्टा आर बाय आर. और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज अगर परसेंटेज चेंज निकालना है. This for percentage change in resistance. Delta R by R is delta L by L into 100 plus 2 delta R by R into 100. Very numerical. A conducting wire of length L and radius R is stretched such that radius of the wire decreases by 2%. सर रेडियस आर स्ट्रेच के बाद क्या बोल? Such that radius of the wire decreases by 2%. Find percentage change in resistance. Find the percentage change in resistance. हमने वायर को स्ट्रेच किया, उसका रेडियस 2% कम हो गया, तो हमने बताना है कि उसकी रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया. Its length increases and radius decreases. कांस्टेंट क्या रहेगा? मास ऑफ वायर क्या होता है? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. स्ट्रेच करने से डेंसिटी वेरी नहीं करेगी. आयरन है तो आयरन की डेंसिटी वेरी रहेगी, और यू कैन से V इज कांस्टेंट. वायर का वॉल्यूम बेसिकली वायर को स्ट्रेच किया, लेंथ बढ़ गई, रेडियस कम हो गया, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहा. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब डेल्टा एल बाय एल इज -2 delta R by R. Percentage change in resistance. Percentage change है तो into 100.
हमें रेडियस में परसेंटेज चेंज दिया है 2%, लेंथ में कितना होगा? 4%. 4%. टोटल परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? 8%. Excuse me, sir. हाँ जी, जैसे अगर हम विथ साइन लिखें तो फिर जैसे डेल्टा एल बाई माइनस टू डेल्टा आर बाय आर है, तो फिर वहां पे जैसे एक और माइनस रुक जा, बस बस रुक जा, आ गया समझ में मेरे को। उस केस में हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, यस डेल्टा आर बाय आर इज नेगेटिव, डिक्रीजेस, तो उसको माइनस पुट करोगे फिर प्लस हो जाएगा ना। यस सर, ठीक है सर. मतलब लेकिन दोनों वे में कर सकते थे ना, फिर आप इसको ऐसे करते, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स इनटू 100 इज 4 माइनस, ये फॉर्मूला 5% तक ही लगाना है, उसके आगे नहीं लगाना। बिकॉज उसके बाद एरर बढ़ता जाएगा। एरर्स के फॉर्मूले तभी लगते हैं अगर परसेंटेज चेंजेस 5% तक दिए हो। लार्जर द परसेंटेज चेंज, लार्जर विल बी द एरर इस मेथड में। सो इसलिए नेक्स्ट लिखो एक, a wire is stretched such that its length increases by 10%, such that its length increases by 10%. Find the percentage change in resistance. इस मेथड से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20%. 20%, बिकॉज लेंथ अगर 10% बढ़ेगी, लेंथ अगर 10% बढ़ेगी, एरिया 10% कम हो जाएगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। बट मैंने कहा 5% तक लगाना है, तो इसको कैसे करें? वी कैन से दैट R is equals to rho L by A. This volume is constant. मतलब L into A का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, L into A is L dash into A dash. फाइनल लेंथ कितनी है अगर 10% बढ़ गई तो? 1.1 है. A dash कितना आ गया? तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर? रो L dash by A dash. L dash is area is 10 by 11 L A. So new resistance is 21% more. परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल R माइनस dash minus R by R into 100. So 5% से ज्यादा होगा तो ऐसे कर सकते हो, 5% तक भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, मतलब वो भी गलत नहीं है, बिकॉज ये तो ठीक मैथड तो प्रॉपर तो यही है, वो एमसीक्यूज में लगाते हैं हम जनरली। क्लियर है दोनों क्वेश्चंस? यस. नेक्स्ट राइट। सर 1 मिनट नोट करें.
Yes. नेक्स्ट टू राइट, बोर्ड का प्रीवियस ईयर है, इजी क्वेश्चन हैं सारे बिकॉज स्कूल लेवल के. टू वायर्स ए एंड बी, two wires A and B of the same material have lengths in the ratio 5:3 and diameter in the ratio 2:3. Diameter in the ratio 2:3. सर लेंथ की रेशियो क्या थी? 5:3. Diameters in the ratio 2:3. If resistance of A is 15 ohm, if resistance of A is 15 ohm, find resistance of B. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब लोग करो अपना अपना. लेंथ की 'डायमीटर रेडियस की रेशियो क्या दिया? Diameter in the ratio 2:3. So 4 ohms. Sir, 4. So 4 ohm. Next to right. Easy है ऐसे क्वेश्चन तो. Next is what is the momentum acquired? What is the momentum acquired by electrons in a wire of length L meter? In a wire of length L meter, when a current of I ampere starts flowing in the wire. Mass and charge of electron are m and e. Momentum acquired बताना है क्या होगा? सर एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दो. क्या पूछना है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. हमें दिया what is the momentum acquired by electrons in a wire of length L meter when current I starts flowing in the wire. Mass and charge of electron are m and e. ये बिल्कुल इजी है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में. इसका मतलब क्या? मोमेंटम एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स.
मोमेंटम एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन हाँ, मतलब drift मास ऑफ velocity. इलेक्ट्रॉन्स इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो निकाल दो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। Mass of electron is mass of one electron into number of electrons, and drift velocity is so n cancel, a cancel, you get there is the momentum of electrons. सर हमने NaL से मल्टीप्लाई क्यों किया है? So, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो मैंने फिर कहा एक इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था फाइंड द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब सब इलेक्ट्रॉन्स का, एक इंडिविजुअल का थोड़ी निकालेंगे, अनसर्टेनिटी लग जाती है एक पे निकालोगे तो, ओके सर, ठीक है सर। बिकॉज आपने पढ़ा था इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम और ऐसे नहीं निकाल सकते, मोमेंटम और पोजीशन दोनों, तुम ग्रुप का निकाल रहे हैं। नेक्स्ट टू राइट, ये 10th का क्वेश्चन है। अब फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, find the potential of point D, find the potential of point D if point B is earthed. Find the potential of point D if point B is earthed. और आपको डायग्राम दिया साथ में। Find potential of point D. सबकी निकाल दो, A, B, B, C, D, E, सब सारे पॉइंट्स की। Find potential of all the points. Find potential of all the points in the circuit. सारे रेजिस्टर सीरीज में है, पैरेलल में है? है ना, सीरीज में है ना पैरेलल में है? पक्का सारे सीरीज में है? नहीं सर, अर्थ कर दिया बी को, देखना वो पड़ेगा। क्या हो गया, अर्थ करने से क्या हो जाता है?
सर पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल 0 हो जाएगी बी ये सीरीज में ही है सारे। Current flowing is सर लेकिन बी को अर्थ करने से कोई फर्क नहीं जा रुक जा यार, मेरी बात सुन लिया, रुक जा अभी। हमें दिया था बी पॉइंट अर्थ है, मतलब हमें सिर्फ ये दिया है कि बी को रेफरेंस मानना। सर ए की सर 26.3 है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बी की पोटेंशियल 0 है। अर्थ करने का मतलब एक्चुअली थोड़ी अर्थ से ऐसे जोड़ दिया उन्हें, अर्थ का मतलब इसको रेफरेंस मानो। तो ए की पोटेंशियल कितनी? अच्छा, करंट कैसे फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में? तो करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, लोअर से हायर? हायर टू लोअर। हायर टू लोअर। हायर टू लोअर। इसकी पोटेंशियल कितनी है? 0। इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 ओम की रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। 5 ए की पोटेंशियल 5 वोल्ट ज्यादा या 5 वोल्ट कम बी से? कम सर करंट हायर से लोअर फ्लो करती है, लोअर से हायर? हायर से लो करंट ए से बी फ्लो कर रही है, तो ए की पोटेंशियल 5 वोल्ट ज्यादा या 5 वोल्ट कम? ज्यादा ज्यादा सर। ज्यादा अगर बी की 0 है तो ए की कितनी? 5। बी से सी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट 10 वोल्ट। सी की पोटेंशियल 10 वोल्ट कम या 10 वोल्ट ज्यादा? कम कितनी होगी बीसी? 0 से 10 कम। माइनस सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 15 15 तो डी की पोटेंशियल सी से 15 कम, तो कितनी? माइनस 25 ई की कितनी कम डी से? 20 वोल्ट तो कितनी हो गई? इन दोनों, इसकी पोटेंशियल -45, इसकी 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 50। हो गया सेटिस्फाई है। अर्थ करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि उसको रेफरेंस मानना है कि उस पॉइंट की पोटेंशियल 0 है। जब भी क्वेश्चन में दिया होगा पॉइंट इज अर्थ, मींस दैट इज टू बी टेकन एज अ रेफरेंस पोटेंशियल। सर और जैसे नहीं ये करना क्वेश्चन एनटीएसटी में आया था 10th के बच्चों को। हाँ जी पूछो। सर जैसे अगर असलियत से नहीं कनेक्ट कर सकते अर्थ को? अर्थ को मतलब आप ऐसे सर्किट लैब में बनाया उसको लेके अर्थ के साथ थोड़ी जोड़ देते हो। वो डिवाइसेस में होता है। डिवाइसेस में अर्थ क्यों करते हैं? अर्थ कनेक्शन क्यों देते हो आप? सर आपके पास एक से मान लो माइक्रोवेव है, उसको अर्थ कनेक्शन क्यों दिया? ताकि अगर उस पर कोई चार्ज आ जाए तो वो हमें ना लगने की जगह अर्थ में चले जाए। बिकॉज अर्थ की पोटेंशियल आप में क्यों आएगा चार्ज, पहले ये बताओ। आपकी पोटेंशियल कितनी है अभी? चार्ज बॉडी आपकी अनचार्ज है, अनचार्ज आपकी पोटेंशियल कितनी है? 0 तो अगर अप्लायंस की भी 0 हो जाएगी तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। यस सर तो इसलिए अप्लायंस को अर्थ से कनेक्ट कर देते क्योंकि अर्थ को रेफरेंस माना हमने। तो अगर अर्थ की पोटेंशियल भी 0 है, आपकी भी 0 है, तो कभी भी अगर लीकेज ऑफ चार्ज हो रहा है तो दैट विल नॉट बी ट्रांसफर टू योर बॉडी, दैट विल बी ट्रांसफर टू द अर्थ इंस्टेंटेनियसली। जैसे ही चार्ज लीक होगा वो अर्थ में चला जाएगा। अप्लायंस 0 वोल्ट पे, आप भी 0 वोल्ट पे, सो नो शॉक विल बी देयर। सो वो अर्थ कनेक्शन वो दूसरा होता है। घर में आपने अर्थ कनेक्शन किया हुआ है, मतलब आपने 3 पिन प्लग्स लगे हुए हैं तो वो तो जोड़े हुए हैं, आपने अर्थिंग की हुई है। तो ये अर्थ में का ज्यादा है। ये जो तीसरी वायर आप लगाते हो ये एक्चुअल में अर्थ में कनेक्ट है कहीं पे? डीप मेटल प्लेट पे कनेक्ट कर। मेटल प्लेट होती नहीं वो मेरे को पता है, वो तो थ्योरी है। आपने घर में किया है ऐसे अर्थ कनेक्शन? यस सर बिकॉज इट हैज टू बी हाउ मेनी फीट नॉर्मली डीप? कितना गहरा खड्डा खोद के वो रॉड डालते हैं?
सही ये नहीं पता, लेकिन वो वायर सी लगी हुई थी। 40 to 50 फीट अर्थ में उसको डाल देते हैं रॉड को, थिक वायर, थिक थिक रॉड, थिक बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया कम चाहिए और साइज ज्यादा चाहिए। सो बिकॉज यहाँ तो आप खुद करो। दूसरी ऑप्शन होती है अगर आपके घर के पास ट्रांसफॉर्मर है तो गवर्नमेंट ने अर्थ किया होता है, गवर्नमेंट ने जो अर्थ में रॉड डाली आप उसके साथ अपनी वायर कनेक्ट कर दो, दैट इज ऑल्सो अर्थिंग। कि गवर्नमेंट ने कई पिलर्स के साथ अर्थ कनेक्शन किए होते हैं सो दैट शॉक इज नॉट देयर। ट्रांसफॉर्मर्स के साथ तो हमेशा होते हैं, तो आप उसके साथ भी अपनी वायर अटैच कर दोगे तो अर्थ हो जाएगा। और अर्थिंग कंडक्टर क्या होता है? अर्थिंग कंडक्टर हम किसको बोलते हैं? ये तो हो गया कि आपने वायर अटैच की, या लाइटनिंग कंडक्टर भी बोलते हैं उसको। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर सर जब लाइटनिंग हो रही होती है तो फिर उससे ट्रांसमिट हो जाती है सीधा अर्थ में, कहाँ लगते हैं ये? ऑन द रूफ। आपकी छत पे लगा है लाइटनिंग कंडक्टर? देख के आना और मेरे को बताना अगर कि आपने अपनी छत पे लाइटनिंग कंडक्टर लगाया है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ बिना देखे 90% घरों में लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगा होता। थ्योरी है। फिर लगा हुआ है। कमर्शियल बिल्डिंग्स में लगा होता है। कमर्शियल बिल्डिंग्स मतलब आपका से मार्केट प्लेसेस हैं, कोई बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है वहां तो बिकॉज वो गवर्नमेंट अप्रूवल ही नहीं मिलते। घरों में इंडिया में मैंने बहुत कम घरों में एक्चुअल में लाइटनिंग कंडक्टर लगा देखा। तो बिकॉज नॉर्मली नहीं लगाते। इलेक्ट्रिसिटी मीटर जब आपका लगता है तो उस टाइम पे चेक नहीं होता कि आपने लाइटनिंग कंडक्टर लगाया या नहीं लगाया। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या प्रोविजन रखी हुई है? गवर्नमेंट ने हर 15-20 घर के बाद जो अप्रूव्ड लोकेलिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, 15-20 घरों के बाद उन्होंने खुद ही लाइटनिंग कंडक्टर लगाया हुआ है सो दैट इफ देयर इज लाइटनिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी विल फॉल ऑन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। मतलब आपने अपने घर के आसपास जब घूमना शुरू करोगे ना, यू विल समटाइम फाइंड कि एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक पोल लगा हुआ है जिसके साथ कोई वायर अटैच नहीं है। सो दैट इज बेसिकली लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कि अगर बिजली गिरेगी तो वहां पे गिरेगी एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द अर्थ। या अगर आपने ट्रांसमिशन केबल्स देखी हैं, ट्रांसमिशन केबल्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी। डैम से सिटी तक लाइट आती है, ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं। ट्रांसमिशन लाइंस को कभी आप देखोगे ना, मतलब जैसे वो 4 पिलर लगा के ऐसे लगता है, बड़ा सा खंबा लगाते हैं। इसमें कभी देखना है ऐसे यहाँ पे ऐसे कॉम शेप कंडक्टर्स लगे होते हैं इस पे। दीज आर लाइटनिंग कंडक्टर्स। और कॉम शेप क्यों बनाते हैं? आपके घर में भी लाइटनिंग कंडक्टर लगेगा तो ऐसे कॉम शेप कंडक्टर बनेगा। मतलब आपने घर की छत से ग्राउंड तक करना है तो ऐसे जो छत पे लाइटनिंग कंडक्टर लगता है वो ऐसा लगता है। ये कॉम क्यों बनाते हैं इस तरह की? सर पॉइंटेड जी सर्किट से बढ़ जाए। ताकि एक ने बोला पॉइंटेड एंड, दूसरे ने कुछ और बोला जो ओवरलैप हो गया। क्या बोला आपने? सर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अच्छा, सरफेस एरिया, पॉइंटेड एंड से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब आपके बैच से नई नई नॉलेज मिल रही है मेरे को कि पॉइंटेड एंड बनाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पॉइंट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, स्फेरिकल सरफेस का ज्यादा होगा? स्फेरिकल का ज्यादा होता है। स्फेरिकल का। तो पॉइंटेड एंड्स का बेनिफिट क्या है? अब किसी ने बोला, शायद अनमोल ने बोला कि पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड क्यों बनाना है? सर पॉइंटेड एंड पे चार्जेस ज्यादा होते हैं। पॉइंटेड एंड पे चार्ज ज्यादा अच्छा चार्ज ज्यादा होता है? ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया कि पॉइंटेड एंड पे चार्ज ज्यादा होता है। ये कहाँ पढ़ा आपने? प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्जेस ये तो नहीं था कि पॉइंटेड एंड पे चार्ज ज्यादा होता है। क्या था पॉइंट चार्जेस का प्रिंसिपल? सरफेस चार्ज पॉइंटेड एंड्स डेंसिटी। पे क्या ज्यादा होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? क्यों करनी है चार्ज डेंसिटी ज्यादा? ताकि वहीं पे लाइटनिंग गिरे। तो अच्छा, वहां पे लाइटनिंग क्यों गिरेगी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो? मैं एक के बाद एक क्यों पूछी जाऊंगा, इसलिए आंसर सोच के बोलना। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वहीं बिजली क्यों गिरेगी? जो हम कहते हैं बिजली गिरी है क्या, बेसिकली क्या आया क्लाउड से? क्लाउड से क्या ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज। चार्ज ट्रांसफर हो रहा है।
चार्ज ट्रांसफर इंसुलेटर में हो जाता है? सर हाई वोल्टेज में मतलब हो जाता है। आयोनाइज। हाँ ये बोला कोई, आयोनाइज किसने बोला वर्ड? स्मर्थ किसने बोला था आयोनाइज वर्ड? बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्जेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए पॉइंटेड एंड्स के आसपास एयर आयोनाइज्ड हो जाएगी, दैट प्रोवाइड्स द कंडक्टिंग पाथ फ्रॉम क्लाउड्स टू द ग्राउंड। तो इसलिए उनको पॉइंटेड बनाते हैं कि वहीं पे आगे गिरे। छत पे भी आपके घर के अगर लाइटनिंग कंडक्टर लगा है तो वो पॉइंटेड एंड्स वाला ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इफ इट फॉल्स इट विल फॉल ऑन दैट एंड ट्रांसफर्स टू द ग्राउंड। और लाइटनिंग होती कितनी बारी है साल में, मतलब या एक दिन में? जलंधर में नहीं पूछा, वर्ल्ड में पूछा हूँ, पूरे मतलब अर्थ पे लाइटनिंग, हाउ मेनी टाइम लाइटनिंग स्ट्राइक्स द अर्थ इन अ डे रफली? ऐसे फिक्स नंबर तो नहीं होगा ना, पर एवरेज क्या है, दिन में कितनी बारी लाइटनिंग स्ट्राइक्स द अर्थ? अपने सिटी की इंफॉर्मेशन पता है? जलंधर में अर्थक्वेक कितने आते हैं साल में, जिसको हम साइंस में अर्थक्वेक गिनते हैं? बिकॉज जलंधर इज अर्थक्वेक प्रोन एरिया, आई थिंक इट्स इन जोन 4, 5 सबसे डेंजरस होता है, तो इट्स इन जोन 4। जोन 5 इज टोक्यो, लॉस एंजलिस, वो जोन 5 में आते हैं, जहाँ पे मतलब टोक्यो में तो मे बी समटाइम्स दिन में भी 2 अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो बिजली कितनी बड़ी चमकती है ऐसे? roughly 1,70,000 times daily. That's the average वर्ल्ड की। यहाँ नहीं चमक रही, पर वर्ल्ड के किसी ना किसी हिस्से में लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही है, तो इसलिए लाइटनिंग कंडक्टर एसेंशियल होते हैं। यहाँ पे जलंधर बीइंग अ प्लेन एरिया, तो यहाँ पे लाइटनिंग इज नॉट दैट मच हार्मफुल, इसलिए इतना लोग केयरफुल भी नहीं है, लाइटनिंग कंडक्टर लगाए नहीं है, बट अदरवाइज इट शुड बी देयर। सर हम अर्थिंग भी लाइटनिंग होनी में चाहिए। क्या चीज? लाइटनिंग में जो सर जो चार्ज आता है उसे स्टोर नहीं कर सकते हम, फिर उसको सर यूज कर लेंगे काफी लाइटनिंग में ज्यादा। जो चार्ज आता है उसको स्टोर नहीं कर सकते, मतलब इतना चार्ज नहीं है कि उसका कोई फायदा हो सके। साइंटिस्ट बहुत बड़ी ऐसी चीजें सोचते हैं, बट अभी तक कुछ इसका ऐसा यूज हमें मिला नहीं, बिकॉज जितनी बड़ी अर्थ है और हर जगह जहाँ पे बिजली गिरेगी या हम कहेंगे लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी, दैट इज नॉट यू कैन से एरिया वे पीपल आर लिविंग, बिकॉज बहुत सारा इंडिया में तो हमें खाली जगह नहीं मिलती, पर वर्ल्ड में आप घूमोगे तो मोस्ट ऑफ द स्पेसेस एम्प्टी जंगल है, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी गिर गई कभी, मतलब साल में 10 बारी भी गिर गई, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट नहीं बना सकते ना उसको स्टोर करने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। से इस क्वेश्चन में अगर एसलेट में कनेक्ट किया होता तो फिर डिवाइड होता है ना सर्किट, तो अर्थ लेयर्स में किया नहीं होता ना, अर्थिंग का मतलब ये नहीं होता अर्थ से कनेक्ट किया। ओके। नेक्स्ट। मतलब पता कैसे चलेगा, जैसे उस पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस में तो हम एसलेट कभी में भी नहीं, कभी भी अर्थिंग का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये नहीं होता कि उसको अर्थ से जोड़ दिया, अर्थिंग का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल हर क्वेश्चन में। ओके सर। नेक्स्ट राइट। एक और ऐसे ही देता हूँ, ध्यान से करना। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड सी। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड सी and the resistance are connected in the circuit. And the resistance are connected in the circuit. Potential of point B and C and resistance are connected in the circuit. This is the symbol for अर्थ। मतलब इसकी पोटेंशियल भी जीरो, इसकी भी जीरो। जल्दी से कर दो अब तो।
क्या है आंसर? इतना टाइम सो गए क्या? रिजल्ट रेजिस्टेंस क्या है? ये जीरो है तो जीरो से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ेगी या कम होगी? मैं यहाँ से जाता हूँ ऊपर, बढ़ेगी। तो बी की पोटेंशियल कितनी? 10 ये जीरो करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर इधर से, 1 एम्पियर इधर से, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? और 4। करंट सी से डी फ्लो कर रही है, सी की पोटेंशियल ज्यादा, डी की ज्यादा? सी तो सी की पोटेंशियल कितनी हो गई? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 6 करंट कितनी फ्लो कर रही है? 1। आर कितना हो गया? ये कौन सा रॉकेट साइंस का क्वेश्चन दे दिया था मैंने जो सोची जा रहे थे बैठ के? इसकी पोटेंशियल 0 तो इसकी 10, इसकी 0 इसकी 4, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का, 6 1 एम्पियर करंट, तो 6 ओम रेजिस्टेंस हो गई। क्या था इसमें? मेरे को तो लगा यार फटाफट कर दोगे सॉल्व। नेक्स्ट टू राइट। I found this on the web. Resistance is in the shape of truncated right circular cone. Truncated right circular cone. The end radii are A and B. The end radii are A and B. B greater than A. End radii are A and B. B greater than A. The specific resistance of the material is rho and altitude is h. If taper is small, if taper is small, if taper TAPER, if taper is small, then find the resistance between plane faces of the resistor. Find resistance of the plane faces of resistor, between plane faces of resistor. सर ट्रंकेटेड का क्या मतलब होता है? ट्रंकेटेड मतलब कोन को काटा हुआ है। हमारे को ये दिया है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका रेडियस a है। मेरे को बताना है से प्लेन सर्फेसेस P और Q के क्रॉस रेजिस्टेंस कितनी है। मतलब मैं अगर इधर बैटरी लगा देता हूँ तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? सर टेपर का क्या मतलब होता है? Taper is this inclination. कौन सा से समझ नहीं। मतलब A और B में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। टेपर इज स्मॉल मतलब ये इंक्लाइंड जो बनाई है, ये इंक्लिनेशन ज्यादा नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? अगर ये सीधा होता तो हम क्या करते? रो एल बाई सर इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया रो एल बाई, इसमें एरिया वेरिएबल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहा है। तो मेरे को ऐसे एक छोटे से पार्ट का पहले निकालनी पड़ेगी रेजिस्टेंस। मैं पहले सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस निकालूंगा।
और ऐसे जो बहुत सारी स्ट्रिप्स मैंने ले ली, तो ये सारी सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज। तो अगर मैंने इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली, मान लो dr, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इंटीग्रेशन ऑफ dr। यस तो मेरे को बस यही निकालना है dr कितना है। तो मैंने इसकी लेंथ को मान लिया, लेट इट बी dx, और इसका रेडियस r वेरीज फ्रॉम A to B। तो dr कितना हो जाएगा? इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना? लेंथ इज dx। ठीक है, ये स्टेप। तो इस पूरे का रेडियस सेम ही होगा या रेडियस भी वेरिएबल होगा? दोनों एंड्स का जो मैंने dx लिया, ये r है, तो ये दूसरा एंड भी r ही है। अगर मैंने ये r लिया, थोड़ा सा बड़ा होगा। थोड़ा सा बड़ा होगा। बड़ा होगा सर। कितना होगा? r प्लस dr। ठीक है, गलत? यस तो dr और dx में रिलेशन निकाल लो, तो ये सॉल्व हो गया। समझ में आया? मैंने ऐसे ली एक स्ट्रिप, ये r, ये r प्लस dr, और ये डिस्टेंस कितना है? dx। तो dr और dx में रिलेशन निकालना है। dr और dx में रिलेशन कैसे निकालूं? समझ में आया निकालना क्या पहले? यस अगर मैं पूछे ये थीटा है, तो tan थीटा कितना होगा? dr by dx। dr/dx। क्लियर है सबको इतना कि tan थीटा dr by dx होगा? क्लियर है? यस। अब मेरे को ये बताओ, ये एंगल भी थीटा ही होगा? यस सर। ये कितना होगा? ये कितना है? b b माइनस माइनस b माइनस a। अब देखो, अब हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। b माइनस मैं a tan थीटा को यहाँ तो लिख सकता हूँ b माइनस a बाई एल, या मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ dr बाई dx। तो इसका मतलब मैं dx को लिख सकता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, dx को ऐसे क्यों लिखा? यहाँ पे एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो हमें सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन सिखाएंगे सिर्फ +2 में, डबल वेरिएबल नहीं सिखाएंगे। तो मैंने इसको dx को भी dr की टर्म्स में लिख दिया, तो dr अब कितना हो गया? रो dx को लिख दिया l अपॉन b माइनस a इंटू dr अपॉन पाई r स्क्वायर। ये सही टर्म तो कांस्टेंट है, तो टोटल रेजिस्टेंस पे कितनी हो जाएगी? 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन -1 by r। आपको सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है, कर दो एंड फाइंड द आंसर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो क्या बन गया? रो एल अपॉन iab।
b माइनस ए कैंसिल, डेरिवेशन भूल जाओ पर ये रट लो बिकॉज ये एमसीक्यूज में यूज होगा। रो एल अपॉन पाई ए बी, कि अगर हमारे पास कॉनिकल कंडक्टर है उसके एक एंड का रेडियस ए है दूसरे एंड का बी है तो जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज रो एल अपॉन पाई ए बी। सर टिप है स्मॉल, इसमें ऐसे दिया हुआ था ना। हाँ समझ आया कैसे किया है? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट ऊपर करना। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? सो नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर एंड कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बट कल मॉर्निंग में एमसीक्यूज के डाउट्स जिसने नहीं भेजे अभी तक भेज दो, वैसे मेजॉरिटी सेम ही है सबके बट स्टिल जिसने नहीं भेजे वो डाउट्स भेज दो मॉर्निंग 8 बजे एमसीक्यूज के डाउट्स की क्लास, जिसका टाइम सूट नहीं कर रहा मैं रिकॉर्ड कर दूंगा बट 8 बजे क्लास लगेगी। वैसे सर 8 to जब तक डाउट्स होते नहीं मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, शायद 20-22 है मैक्सिमम, कुछ के तो 5-6 ही हैं तो मैक्सिमम शायद 20-25 क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से 1 आवर में हो जाएंगे। कुछ तो बहुत बेसिक्स भी डाउट में भेज दिए हैं। एक क्वेश्चन जो सबने डाउट में भेजा वो करना नहीं है अभी, वो शायद 17 है शायद, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का कुछ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, तो क्योंकि अभी हमने मैग्नेटिक नहीं पढ़ा इसलिए वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी सारे तो बहुत इजी से थे पर डाउट है तो कर लेंगे कल एक बारी क्लास में। इसमें देख लेना कुछ पूछने वाला हो तो पूछ लेना मेरे से, नहीं तो कल करते हैं आगे फिर इसके। और एक असाइनमेंट मैंने सेंड की थी, कुछ लोगों ने सबमिट कर दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी की, बाकी लोग उसको वो कर तो लो। बहुत बेसिक थी ना वैसे। हाँ वो 10th वाला बिल्कुल था। बेसिक असाइनमेंट थी लेवल 1 वाली स्कूल के क्वेश्चंस के लिए, तो उसको जल्दी से करके एंड सबमिट कर दो।